Hello, may I audible? Yes, sir. Okay, the Good morning, screen. sir. Good morning. So today the subject is changed. Today we discuss or we take the OOPS class. Okay, object oriented and programming. And in previous, this class is taken by Arijit sir and Subham Arijit sir. Okay. ओके और नंबर एक ही स्टूडेंट है, कोई अदर्स कोई क्लास वहां पर हो रहा है? नो सर, सब लोग ज्वाइन नहीं किए, मैं बुला रही हूँ सर। ओके ओके ओके। यहाँ पर so today's topic is method overloading and method overriding. Okay, and here we discuss, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में. Before we start the method overloading and overriding, first of all we discuss the polymorphism. Polymorphism means one name and multiple forms. Okay. And in polymorphism, first of all we discuss one name multiple function means the overload member function are selected because polymorphism in Java is the concept by which we can perform a single action in different way. Okay, अगर हम लोग जावा में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, वी परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे. अगर कोई भी एक प्रोग्राम में कोई भी एक फंक्शन को हम लोग अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल जो एक एक्शन है उसको हम लोग मेनी टाइप्स में हम लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. वो कैसे मैं बता रहा हूं. और इन प्रीवियस क्लास मेथड ओवरलोडिंग शायद हो चुका है ना, मेथड ओवरलोडिंग हो गया है. देखो, so before we discuss method overloading and method overriding, we discuss the polymorphism part. And the word polymorphism means having many from in simple word. We can define polymorphism as the ability of message to be displayed in more than one form. Okay. So मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल में पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करूंगा, वो समझ में आ जाएगा शायद. देखो अच्छी तरीके से समझो, ए पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. ओके, like a man that the same time is a father, a husband, a employee. Okay, so the same person process different behavior in different situation. This is called polymorphism. अगर एक आदमी एक टाइम पर 3 या 4 रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, समझो वो किसी के पास क्या वो
उसका जो चाइल्ड है उसके पास वो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो एक किसी के पास वो एक हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, किसी के पास वो एक सॉन मतलब एक सॉन का रोल प्ले कर रहे हैं, और किसी के पास वो एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहे हैं। आदमी एक है लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये मालूम हो गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म is a word that means having many forms. In simple word, we can define polymorphism as the ability of message to be displayed in more than one form. Okay. And now polymorphism is considered one of the important features of object-oriented programming, because polymorphism allow us to perform a single action in different way. In the other word, polymorphism allow you to define one interface and have multiple implementation. The word poly means morphs many and morph means from. Okay, many from. So it means many from perform करता है polymorphism. मालूम हो गया polymorphism क्या है? देखो polymorphism जावा में बहुत सारा प्रोसेस में polymorphism यूज होता है। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग में पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। ओके, एंड एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो इन द सिंपल वे वी डिफाइन ए live example like a person is perform various types of action like a father, like a son, like a husband, or like a employee. Okay, but this person is one, but he perform the 4 types of operation in a day. Okay, so in Java polymorphism is mainly divided into 2 types, एक compile time polymorphism और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वो परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, इट वुड बी नाइस if the appropriate member function could be selected while the program is running. This known as runtime polymorphism, and C++ supports a mechanism known as virtual function to achieve runtime polymorphism. तो अगर मैं सिंपल वे में कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्क्राइब करूंगा तो क्या होगा, देखो, in compile time polymorphism, it is also known as static polymorphism. These types of polymorphism is achieved by function overloading method. Okay, so हम लोग क्यों पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम लोग अगर मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस को स्टडी करेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ method overloading and method overriding. Okay, so in polymorphism there are 2 types of polymorphism is here. One is compile time polymorphism and one is run time polymorphism. Okay, so compile time polymorphism क्या है, it is also known as static polymorphism. These types of polymorphism is achieved by function overloading method. Okay, so in method overloading हम लोग कैसे इस compile time polymorphism को यूज करते हैं, तो समझो क्या है, void function integer a एक है, एंड void function integer a integer b और एक है, एंड void function character एक है। ओके, ये ओवरलोडिंग में है।
सर आपका स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। स्लाइड में मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा हूँ, क्योंकि ओवरलोडिंग और ओवर रीडिंग में सिर्फ मैं क्या चीज है वो आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल मैं बाद में दो एक साथ दूंगा। तो इसमें प्रोसेस क्या है वो मैं बोल रहा हूँ। देखो, मेथड ओवरलोडिंग में क्या है, पहले आज जो तीनों चीज है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मेथड ओवरलोडिंग क्या है और मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ये तीनों चीज पहले हम लोग मालूम कर लेंगे। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल, मतलब जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में हम लोग कैसे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवररीडिंग कैसे काम करता है वो बताऊंगा, ठीक है। तो इन मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, when there are multiple function with the same name but different parameter, then their function are said to be overloaded, and function can be overloaded by change in the number of argument and a change in the types of argument. Okay, एक कैसे हो रहा है मेथड ओवरलोडिंग में, मैंने क्या बोला था, देखो अगर हम लोग एक प्रोग्रामिंग में इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है, इस तरीके से हम लोग अगर कोई भी फंक्शन हम लोग ले लेंगे तो वहां पर मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग वहां पर काम करेगा। वहां पर मैंने पहले बोला था वॉइड में इंटीजर ए, वॉइड में हम लोग इंटीजर ए इंटीजर बी एंड वॉइड फंक्शन कैरेक्टर ए, इस तरीके से हम लोग अगर लेंगे तो वहां पर मेथड ऑपरेटर, ये यहाँ पर एक ऑपरेटर है ओवरलोडिंग का, एक एग्जांपल में यहाँ पर दिया। ये क्या है, C++ हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑपरेटर विथ एज स्पेशल मीनिंग फॉर ए डेटा टाइप्स। द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग सच स्पेशल मीनिंग to an operator is known as operator overloading. Okay, and we can overload all the operator except the following: class member, access operator and scope। ये एग्जांपल में आता नहीं है, ये एक डेफिनेशन है। तो देखो, और एक में सिंपल वे में एक बता रहा हूं। अगर हम लोग समझो एक, जो जावा में जो हम लोग सुपर क्लास और सब क्लास जो हम लोग लिखते थे, सुपर क्लास और सब क्लास, हम लोग वहां पर समझो सुपर क्लास में एक चीज और एक पैरामीटर अगर हम लोग यूज करें तो सब क्लास क्या करता है, और सब क्लास में एक पैरामीटर है, सुपर क्लास में एक पैरामीटर है और सब क्लास में एक पैरामीटर है। हम लोग सब क्लास में जो पैरामीटर, अगर हम लोग एक पैरामीटर को वहां पर राइट कर रहे हैं और वहां पर रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या है, उसमें हर एक डेटा नहीं है। अगर हम लोग ट्री और ग्राफ में डिस्कस करेंगे तो ट्री और ग्राफ में क्या होता है, पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स के बाद वहां पर क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो क्या है, पेरेंट्स के बाद जो चाइल्ड होता है उसमें जो डेटा है, समझो चाइल्ड में जो डेटा है, चाइल्ड क्या करता है, और चाइल्ड को हम लोग सब क्लास कहते हैं और पेरेंट्स को हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स आर कॉल्ड सुपर क्लास। ओके, तो सब क्लास में जो डेटा है, सब क्लास का डेटा क्या होता है, उसमें जो डेटा है उसको अगर रीडिंग करेंगे तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिस हो गया तो वो क्या करेगा, जो सुपर क्लास में जो डेटा है उसको फिर से रीड कर लेगा, और सब क्लास क्या करेगा, खुद का डेटा और सुपर क्लास का डेटा दोनों ही डेटा वो क्या करेगा, रीड करेगा। तो इसलिए उसको मेथड ओवर रीडिंग हम लोग बोलते हैं। और मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग में वो जो डेटा है, डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अगर मैं मेथड ओवरलोडिंग को सिंपल वे में अगर डिस्कस करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं, इन ए क्लास मेथड ओवरलोडिंग क्या है, if a class has multiple method having some name, if a class has multiple method having same name but different in parameter, it is known as method overloading. Okay,
थ्योरी में अगर समझ में नहीं आता तो मैं वो एग्जाम्पल में भी बता दूंगा। मैं पहले जो चीज है, आज तो पहला क्लास है, ठीक है, तो पहला क्लास में चीज क्या क्या है मैं वो बता रहा हूँ। फिर मैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मेथड ओवरलोडिंग में मेथड ओवरलोडिंग कैसे होता है, मेथड ओवरराइडिंग में मेथड ओवरराइडिंग कैसे होता है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो एक सेकेंड। तुम्हारा जावा में क्या क्या हुआ? वो डेटा टाइप, स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, एरे, फिर इफ, स्विच, व्हाइल, डू व्हाइल, ये सब सारा चीज हो गया। नेस्टेड लूप। हेलो, कोई भी एक बोलो। यस सर, हो गया। वो सारा क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है यस सर। उसका प्रोग्रामिंग हुआ है या सिर्फ क्लास हुआ है? नहीं, बस सर सूडो सूडो कोड बताए थे। स्यूडो कोड बताए थे ना। तो प्रोग्रामिंग अब तक तुम्हारा ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? 23rd से ना? यस सर। हॉस्टल यहाँ पर ले लिए हो ना? हॉस्टल अब तक नहीं लिए हो? बाहर से जो लोग हो तुम लोग? बहुत लोग लिया है सर, कुछ लोग नहीं भी लिया है। जो लोकल है वो लोग शायद नहीं लिया है ना। वो क्लास पैकेज का जो टॉपिक्स है वो हो गया। क्लास पैकेज, जावा में पैकेज क्या है? नो सर। पैकेज के बारे में सर ज़्यादा नहीं बताएं। पैकेज के बारे में नहीं बताया। और इंटरफेस, नो सर। नो सर, सब नहीं बात। नहीं सर। सर कॉन्स्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में ही बता रहे थे। कॉन्स्ट्रक्टर हो गया ना? हाँ, कॉल बस बाय, बस वही। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। नहीं, ये सब नहीं बताया। पैरामीटराइज्ड ये सर कंस्ट्रक्टर नहीं बता हुआ। रहे थे। ओ, सर सिर्फ कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन बताया, फिर उसका टाइप्स बताया, बस। और व्हाइल, डू व्हाइल, उसका प्रोग्रामिंग हो गया या सिर्फ थियोरी हुआ है? व्हाइल, डू सर व्हाइल लूप, प्रोग्रामिंग तो नहीं हुआ है। स्विच, स्विच केस क्या होता प्रोग्रामिंग। है? इफ में कैसे हम लोग यूज करते हैं? नेस्टेड लूप में फंक्शन क्या है? ठीक है, तुम्हारा मॉड्यूल 3 तक है, टाइम मिल गया तुम्हारा तो। जो जेयूटी का जो सिलेबस है, सिलेबस से वजह से, और जो तुम्हारा जो 10 सेमिस्टर का जो टाइम है, टाइम तो शायद 2 या 3 मंथ एक्सटेंड हो गया है, नया जो वहां पर मिला है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर सिर्फ ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बता रहा हूँ। फिर वो डिस्कस कर दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू से। फिर वहाँ पर नेक्स्ट फिर आएगा इनहेरिटेंस, पैकेज, इंटरफेस। पैकेज और एक बताना पड़ेगा, पैकेज क्या है और इंटरफेस क्या है। फिर सर अभी तो बहुत है ना, स्टैटिक, फाइनल, दिस, सुपर, कीबोर्ड, क्या क्या है। हाँ, सब कुछ है वो। ये तो तुम्हारा जो है पहला जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के सर फर्स्ट मॉड्यूल में ये वो चीज है, स्टैटिक, फाइनल, स्टैटिक, फाइनल। यहाँ पर तो दिस, मैं सुपर, ये सब सब इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पर अच्छा नहीं, देखो, अगर कर काट रहे नहीं भी हैं। होता है तुम लोग बोलना क्या क्या करवाना पड़ेगा, मैं वो बोल दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ में जो सिलेबस है, सिलेबस के थ्रू फॉलो करते हैं, इसलिए क्योंकि देखो तुम्हारा जो हाँ सर। यहाँ सोमवार और बुधवार को बैठने का बोला गया। क्या हाँ, देखिए आज देखो हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि सिलेबस को हम लोग फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि अब तो तुम्हारा एग्जाम जो होगा, एग्जाम शायद तुम लोग का ऑफलाइन में होगा। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन तो स्टार्ट हो रहा है, तो ऑफलाइन में स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन में एग्जाम होगा, तो एग्जाम के टाइम पे जो सिलेबस वो लोग फॉलो करेगा और जहाँ से क्वेश्चन होगा वो तो सिलेबस से ही क्वेश्चन होगा। तो हम लोग सिलेबस फॉलो करेंगे। सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया, सिलेबस में जो जो चीज होगा, फिर हम लोग बाहर
जो है तुम लोग जानना चाहते हो वो मैं बता दूंगा। की जो है, की यहाँ पर शायद नहीं है, तो की तो मैं यहाँ पर नहीं दिख रहा हूँ। सर तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तक हुआ है हम लोग का। हाँ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तक हुआ है। मेथड, फिर मेथड ओवरलोडिंग है, मेथड ओवर राइडिंग भी है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म तो यहाँ पर नहीं भी होगा तो पॉलीमॉर्फिज्म करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग। ओके। एंड एग्जाम्पल पर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पॉलीमॉर्फिज्म बहुत टाइम देता है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड where we use polymorphism in Java, because method overloading and method overriding में हम लोग polymorphism का यूज कर ही लेते हैं, क्योंकि वो करना पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो है डायनेमिक मेथड डिस्पैच है, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस में सब क्लास सुपर क्लास वहां पर यूज होता है, क्योंकि इनहेरिटेंस में ही वो होता है कि चाइल्ड पेरेंट्स का जो प्रोसेस है, जो हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं, वो इनहेरिटेंस से ही आता है। फिर इंपोर्ट पैकेज है, इंटरफेस वहां पर है। ठीक है। फिर वो यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। फिर तुम्हारा सेकेंड मॉड्यूल में आ जाएगा वो जो जेडीबीसी जो है, फिर यूआरएल फॉर्मेट कैसे होता है, टीसीपी आईपी क्लाइंट प्रोटोकॉल क्या है, फिर क्लासेस एंड इंटरफेस, फिर आएगा टीसीपी आईपी सर्वर सॉकेट जो है, फिर हैंडलिंग प्रोसेस जो है, वो सारे चीज वहां पर आ जाएगा। थ्रेड्स आएगा। एंड नेक्स्ट मॉड्यूल 3 में एप्लेट आ जाएगा। एप्लेट एचटीएमएल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एचटीएमएल से तुम लोग जब प्रोग्रामिंग करोगे तो एक एचटीएमएल से पेज कैसे डिजाइन होता है वो यहाँ पर मिल जाएगा। हम लोग जो फ्रंट पेज जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो हम लोग एचटीएमएल यूज करके ही बनाते हैं। जो समझो फेसबुक का जो फ्रंट पेज तुम लोग देखते हो, या कोई भी जो लॉगिन पेज है, ठीक है, लॉगिन पेज जो भी लॉगिन पेज हो, लॉगिन पेज वो सब HTML यूज करके ही वहां पर बिल्ड होता है, हम लोग करते हैं। ठीक है। तो मेथड ओवर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वो मैंने बोल दिया, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड ओवर रीडिंग क्या है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बाद में बताऊंगा एक एक करके। तो आज सिर्फ चीज क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है, इफ ए क्लास हैज मल्टीपल मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर, इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है समझो, इफ वी हैव टू परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन हैविंग सेम नेम of the method increase and readability of the program. Okay, suppose तुम लोग समझो, suppose you have to perform addition of the given numbers, but there can be any number of argument. Okay, if you write the method such as a int अगर हम लोग ले लिए, a के अंदर int and int for 2 parameters and b के अंदर क्या है int और int for 3 parameters, इस तरीके से हम लोग अगर डिजिट लेंगे तो क्या होगा, for 3 parameters then it may be difficult for you as well as the other programmers to understand the behavior of the method because its names different. Okay, मतलब क्या है, समझो एक ए और बी दो नंबर है, ए और बी के अंदर जो नंबर है वो हम लोग एडिशन में कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक ए के अंदर इंट करके 2 पैरामीटर और बी के अंदर भी इंट एंड इंट करके जो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू के 3 पैरामीटर हम लोग ले लिया। तो अगर उसमें एडिशन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि सेम नेम है, इसलिए। सो वी परफॉर्म द मेथड ओवरलोडिंग टू फिगर आउट ऑफ द प्रोग्राम क्विकली। मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। हम लोग नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर चेंज कर लेंगे और अगर डेटा टाइप हम लोग चेंज कर लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और मेथड ओवरराइडिंग में हम लोग क्या करेंगे,
मेथड ओवरराइडिंग में क्या प्रोसेस क्या है ये समझ लो। इफ सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास जो ट्री में हम लोग यूज करते हैं, इफ सब क्लास or child class has the same method as declare in the parent class, it is known as method overriding in Java। मैं पहले जो एग्जांपल वहां पर बोल रहे थे, समझो एक ट्री है, ट्री में क्या है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्या है, ए से हम लोग डिनोट कर रहे हैं पेरेंट्स को। ए से क्या है, दो चाइल्ड है, एक चाइल्ड है बी और एक चाइल्ड है सी। ओके, तो क्या है, अगर समझो सी चाइल्ड क्या है, ए चाइल्ड है सुपर क्लास और बी और सी चाइल्ड है सब क्लास। ए चाइल्ड में कोई इंफॉर्मेशन है और बी एंड सी चाइल्ड में कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर बी और सी चाइल्ड उसमें जो डेटा है वो उस डेटा को रीड करने के बाद ए में जो डेटा है उस डेटा को भी रीड कर लेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। वही बोल रहे हैं, इफ सब क्लास और चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर इन द पेरेंट्स क्लास, it is known as method overriding in Java. In the other words, if a subclass provides the specific implementation of the method that has been declared by one of its parent class, it is known as method overriding. Parent class जो method declare कर रहे हैं वो same method अगर सब क्लास और चाइल्ड क्लास भी डिक्लेयर किया तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। ओके, फिर यूजेस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। Method overriding is used to provide the specific implementation of method which is already provided by its superclass। superclass जो provide कर पहले कर दिया है उसको subclass provide करेंगे। and overriding is used for runtime polymorphism। runtime polymorphism पे भी वो यूज होता है। ओके, the method must have the same name as the parent class। मेथड ओवरराइडिंग का रूल्स क्या है, मेथड ओवरराइडिंग कब होगा, अगर मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज द पेरेंट क्लास एंड मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर इन द पेरेंट क्लास। अगर सेम नेम होगा, अगर सेम पैरामीटर होगा एंड देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप इन इनहेरिटेंस। ओके, अगर ये तीनों चीज होगा तो उसमें क्या होगा, वो मेथड ओवरराइडिंग फॉलो करेगा। ठीक है, देखो मेथड ओवरराइडिंग का एक मैं सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। समझो बैंक में क्या है, बैंक में एक क्लास है। ठीक है, बैंक इज ए क्लास दैट प्रोवाइड फंक्शनली टू गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, बैंक में एक क्लास है, समझो कंसीडर ए सिनेरियो where bank is a class that provide functionally to the get the rate of interest, however the rate of interest varies according to the bank। for example, SBI, ICICI और Axis Bank provided SBI 8% इंटरेस्ट वहां पर दे रहा है, ICICI 7% और Axis Bank 9% इंटरेस्ट वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हम लोग जो यूज करेंगे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग वहां पर यूज करेंगे। वहां पर क्या होगा, वो फ्लोट नंबर पे ही हम लोग वहां पर लेंगे। ठीक है, एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, समझो एक बैंक का जो एक चाइल्ड बैंक है, चाइल्ड समझो एक पेरेंट्स बैंक है, समझो आरबीआई एक पेरेंट्स बैंक है। ठीक है, तो आरबीआई एक रूल्स वहां पर प्रोवाइड करता है कि बैंक ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे,
और बैंक ऑफ इंटरेस्ट का कैसे फॉर्मूला है। तो वही सारे चीज क्या है, उसका जो चाइल्ड ब्रांचेस है, समझो एक्सिस है, आईसीआई है और एसबीआई है, वो क्या करेंगे, वो आरबीआई का जो प्रोसेस है वही वो फॉलो करेंगे। इसके मतलब पेरेंट्स जो प्रोसेस वहां पर फॉलो कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस वो चाइल्ड फॉलो करेगा। तो यही एक प्रोसेस मेथड ओवरराइडिंग में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेम प्रोसेस वहां पर यूज होता है। ओके, एंड मेथड overriding is a static method can sorry, a static method cannot be overridden. It can be provided by runtime polymorphism, so we will learn it later what is the procedure of the method overriding and why can we not override static method. static method जो होता है, static method का हम लोग override नहीं कर सकते हैं क्योंकि it is because the static method is bound which classes whereas in instant method is bound which an object and static belongs to the class area and intense belongs to the heap area. okay, so देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये तो सिर्फ ओवरलोडिंग क्या चीज है, क्या कैसे यूज होता है, ओवरराइडिंग क्या चीज है, वो कैसे यूज होता, कैसे यूज नहीं होता, वो कैसे यूज होता है, मतलब एग्जाम्पल कैसे होता है, और उसका जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास, कल शायद है, कल तुम लोग का क्लास है। हेलो So, देखो कल मैं, sir, हाँ बोलो। so what is the difference between compile time polymorphism and runtime polymorphism? compile time polymorphism and runtime polymorphism, participant cannot see. Okay, देखो पॉलीमॉर्फिज्म मैं क्या बोला था, पहले बोलो पॉलीमॉर्फिज्म चीज क्या है, बोलो पॉलीमॉर्फिज्म का So, चीज बोलो, फिर मैं बता रहा हूँ। one name different form. वन नेम डिफरेंट फ्रॉम, एग्जाम्पल में क्या बोला था। So, जैसे कि एक पर्सन है, वो बहुत सारा रोल प्ले करता है, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ एम्प्लॉय, एज अ हस्बैंड। एक एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में क्या है, वो डिफरेंस टाइप का जो रोल प्ले करता है उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये एक आदमी के बीच में ही होता है, मतलब उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, आदमी सेम रहता है लेकिन कैरेक्टर चेंज होता है। ओके, सो इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म whenever an object is bound with their functionally at the compile time, जब कंपाइल हो रहा है, दिस इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म and a compile time Java knows which method to call by checking the method signature, so this is called compile and time polymorphism और static और early binding। मतलब क्या होता है, देखो इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वो जब कंपाइल होता है तब उसको मालूम होना चाहिए कि उसके क्या चाहते हैं, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में उसको क्या चाहिए और क्या उसको डिमांड करना है। एंड उसको अगर मैं इन सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, हाँ बोलो, देखो समझो इन कंपाइल टाइम में क्या होता है, अगर हम लोग कंपाइल कर रहे हैं तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का तुम लोग नाम शायद सुना होगा, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस जब कंपाइल होता है तब उसको क्या चाहिए, वो पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में क्या है, समझो सब क्लास में एक चीज है और सुपर क्लास में एक चीज है। तो सब क्लास अगर उसमें जो एलिमेंट है उसमें वो एक कॉल कर रहे हैं कि उसको इस पैरामीटर को चाहिए, लेकिन वो सब क्लास में नहीं है, तो वो क्या करता है, वो ऊपर जो सुपर क्लास होता है सुपर क्लास का भी डेटा वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो एक कंपाइल टाइम में ये मालूम होता है और ये चीज कर सकते हैं। और रन टाइम में क्या है, रन टाइम के समय
whenever an object is bound with the functionality at runtime, this is known as runtime polymorphism. Runtime polymorphism can achieve by method overloading and Java virtual machine, जो JVM में तुम लोग बाद में करोगे. Determine the proper method to call all the runtime, not at the compile time. It is also called dynamic and later binding method overriding says. देखो रन टाइम एंड कंपाइल टाइम दोनों थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन चीज सारे सेम करता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोसेस मेन होता है इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम में क्या होता है, इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द कॉल इज रिजॉल्व्ड बाय द कंपाइलर. ओके, इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक. एंड इन रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कॉल इज नॉट रिजॉल्व्ड बाय द कंपाइलर. जब हम लोग एक सर्चिंग ट्री ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर तो हम लोग सर्चिंग प्रोसेस यूज करते हैं, एक चीज को और एक एलिमेंट को हम लोग सर्च करते हैं. तो वहां पर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम में क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द कॉल जो हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के लिए जब हम कॉल करते हैं, कॉल इज रिजॉल्व्ड बाय द कंपाइलर. एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम में कॉल इज नॉट रिजॉल्व्ड बाय द कंपाइलर. ओके, एंड वन मेथड शेयर द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, जो कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम होता है. वन मेथड शेयर द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर और सिग्नेचर एंड डिफरेंट रन टाइम. ओके, बट in runtime method with same parameter and signature but associate with different class. वहां पर different class यूज होता है और यहाँ पर same class यूज होता है. and in runtime compile time polymorphism क्या होता है, need to be executed it no early at the compile time. ओके, वो बहुत कम टाइम में वो हो जाता है वो काम. need to be execute it is known early at the compile time, but in runtime वो क्या होता है, the method needs to be execute it no at the runtime and is take a large time. okay, and इस तरीके से बहुत सारा डिफरेंस है. लेकिन अगर तुम लोग जब कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का जो प्रोग्राम जब करोगे, देखो ये सारे जो चीज है ये जब प्रोग्राम के थ्रू तुम लोग करोगे तो ओवर रीडिंग ओवरलोडिंग प्रोसेस क्या है और उसमें पॉलीमॉर्फिज्म में रन टाइम क्या यूज हो रहा है और कंपाइल टाइम कैसे यूज हो रहा है, वो जब तुम लोग प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग करने के टाइम वो अच्छी तरीके से मालूम होगा. ठीक है, ठीक है. देखो आज तो टाइम कंप्लीट हो गया, तो मैं नेक्स्ट कल शायद क्लास है, कल क्लास में मेथड पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देके और मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवररीडिंग का कैसे काम कर रहा है, तो वो मैं अगर होगा तो मैं एक प्रोग्रामिंग करके ही यहाँ पर दिखा दूंगा. क्योंकि प्रोग्रामिंग अगर नहीं करेंगे तो उसमें मालूम अच्छी तरीके से नहीं होगा. क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब हम लोग डेटा देंगे, जब हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो वो कैसे रिप्लेस हो रहा है और कैसे काम कर रहा है वो मालूम हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. चलो आज इतना, नेक्स्ट क्लास कल है शायद. ठीक है, कल मैं बता दूंगा. ओके.